morning, class 11. It's a new chapter today. This is the 5th chapter, the alien planet, the green movement's role. The following article was written by Nani Palkiwala and published in the Indian Express on 24th November 1994. The issues that he raised regarding the declining health of the earth continue to have relevance. Here in this chapter, they have described about the planet, the alien planet, बीमार जो है planet, उसके बारे में, and the green movement's role, the green revolution role. One cannot recall any movement in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the Green Movement, which started nearly 25 years ago. In 1972, the world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand. Since then, the movement has not looked back. सबसे पहले जो है Green Movement ये 25 years पहले शुरू हुआ था in the year 1972, and since then it has never looked back. आगे आगे इसमें तरक्की होती गई. We are shifted, one hopes, from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world. It is a shift in human perceptions as revolutionary as that introduced by सबसे पहले Copernicus ने, who taught mankind in the 16th century that the earth and other planets revolve around the sun. इन्होंने बताया था कि अर्थ and the other planets they revolve around the sun. जबकि इससे पहले विपरीत होती कि sun घूमता है. For the first time in human history, there is a growing worldwide consciousness that the earth itself is a living organism. अर्थ के लिए कि ये भी एक जीवित है ऑर्गेनिज्म जो है, an enormous being of which we are parts. और उस अर्थ के इसमें की जान है, उस अर्थ के हम लोग हिस्से हैं. It has its own metabolic needs and vital processes which need to be respected and preserved. अब जहाँ हम रहते हैं, जो हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं, तो उसको भी तो हमें प्रिजर्व करना पड़ेगा, उसको भी तो अच्छे से रखना पड़ेगा. The Earth's vital signs reveal a pattern in declining health. और हम उसी प्लैनेट की हेल्थ को जो है उससे हम खिलवाड़ कर रहे हैं. पूरा हमारा जो है इकोसिस्टम बिगड़ रहा है, आपके डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है, पोल्यूशन इतना हो रहा है, सब कुछ खराब हो रहा है. उसकी हेल्थ जो है इसकी अर्थ की डिक्लाइन हो रही है, कम होती चली जा रही है. We have begun to realize the ethical obligations to be good stewards of the planet and responsible trustees of the legacy to future generations. अब जो अर्थ ने हमको दिया है तो हमें उसको संभाल के सहेज के इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमें भी तो हमारी पहले वाली जनरेशन से मिला है. हम अपने बाद वाली जनरेशन को क्या देंगे? अगर हम जो भी हमको प्राप्त होता है अर्थ से, उसे हम सब खत्म कर देंगे अपने में ही, अपनी जनरेशन तक, तो अगली जनरेशन क्या करेगी? उनके पास तो कुछ भी नहीं है, क्या इस्तेमाल करें? ना हमने उन्हें कुछ दिया, हमें भी तो अपने फॉरफादर्स या अपनी पहले वाली जनरेशन से मिला है. तो जो हमें मिला है उसको हमें बहुत सोच समझ के खर्च करना है. रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, रिन्यू तो हो जाएगा, लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल है उसको फिर हम आगे की जनरेशन को क्या देंगे? व्हाट दे विल डू? द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development. हम आगे को क्या देंगे भाई? जब हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं, जब हम पहले ही सब कुछ खत्म कर देंगे तो क्या है? खाली हाथ, कुछ देने के लिए है ही नहीं. In its report, it defined the idea as development that meets the needs of the present
without compromising the ability of future generations to meet their needs. That is, without starving the natural world of resources future generations would need. आप पूरी तरह से इसको समाप्त ना करें जो हमको नेचर से मिला है, उसे ना समाप्त करते हुए अच्छे से सोच समझ के इस्तेमाल करते हुए जो बचे वो हमें आगे की जनरेशन को सौंप देना है, दे देना है. Scientists have catalogued about 1.5 million living species with which mankind shares the earth. We are not the only species living on this earth. There are so many other species. और भी हैं, कीड़े मकोड़े जानवर सब जो हैं कि जो इस धरती पे रहते हैं, इस पृथ्वी पे, इस अर्थ पे रहते हैं, केवल अकेले मनुष्य नहीं हैं. Estimates vary widely as regards the still uncatalogued living species. Biologists reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness. और कितनी तो स्पीशीज जो हैंगी वो अंधकार में गुम हो चुकी हैं, पता ही नहीं है. केवल आपका जो है 1.54 मिलियन की लिविंग स्पीशीज है, और कितनी जो है जो कि डिस्टिंग्विश हो गई है, ख़त्म हो गई हैं, पूरी तरह से पृथ्वी में विलुप्त हो चुकी हैं. One of the early international commissions which dealt interior with the question of ecology and environment was the Brent Commission, which had a distinguished Indian as one of its members, Mr. L.K. Jha. The first Brent report raised the question, are we to leave our successors a scorched planet of advancing deserts, impoverished landscapes and ailing environment? Mr. Jha जो थे, उसके मेंबर मिस्टर L.K. Jha, उन्होंने ये लिखा कि हमारे जो सक्सेसर हैं, हमारे बाद वाले जो हैं, हम उनको क्या देंगे? डेजर्ट्स जहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं हैंगे, खाली लैंडस्केप्स, बिल्कुल बंजर भूमि पड़ी हुई है, और जो है एक बीमार वातावरण, एलियन सिक. तो उनको फिर क्या मिला हमसे? ये हमें भी तो पहले वाली जनरेशन ने ही दिया था, तो हमें भी तो आगे की जनरेशन को देना है. तो जब हम सब कुछ ख़त्म कर देंगे तो आगे वाली जनरेशन के पास क्या है? कुछ भी नहीं बचेगा. मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन in his thoughtful book The Global Economic Prospect points out that the Earth's principal biological systems are four: fisheries, forests, grasslands and croplands. 4 में उन्होंने उसको डिवाइड किया जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम है. सबसे ज़्यादा आप देखिए फिशरीज का जो व्यापार है, देन हमारे फॉरेस्ट, हमको वुड मिलता है, तो आपको फ्रूट्स मिलते हैं, ये फ्यूल मिलता है. अब आपने जो है कि आपको लकड़ी चलानी है, जंगल में जो लोग रह रहे हैं, उनको खाना पकाना है, तो वो क्या करेंगे? वो तो फॉरेस्ट को ही काट देंगे, पेड़ों को काट देंगे और अपना फ्यूल पकाएंगे. खाना क्या बनेगा उसके ऊपर? उनको तो फ्यूल मिल गया. व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज बर्तन के अंदर जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो उसके नीचे है जो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. जो आप जला रहे हो, अगर आप उसको इस तरह से जलाते चले जाओगे, लकड़ियों को काट काट के अपना खाना पकाते चले जाओगे, तो फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरी की पूरी जंगल ही ख़त्म हो जाएगी. और जो हो रहा है, काट काट के बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई चली जा रही है, मल्टीज बनाई चली जा रही है, जिसके कारण क्या है? ड्रेनेज सिस्टम इफेक्ट हो रहा है, रेन्स प्रॉपर नहीं आती हैं. जब बरसात नहीं होगी तो फसल कहाँ से होगी? और होगी बरसात तो पानी कहाँ? सड़कों पे जमा होगा, ब्लॉकेज होगा, ड्रेनेज सिस्टम इफेक्ट होगा. जहाँ पर कि आपकी पानी जाना चाहिए था आउटलेट, वहाँ तो आपने बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बना दी, तो पानी कहाँ जाना है? बाहर ही तो आएगा सड़कों पे. So, and they form the foundation of the global economic system. In addition
ecosystems provide virtually all the raw materials for industry except minerals and petroleum derived synthetics, है ना। ये जो है हमें कच्चा माल भी मिलता है इनसे, जंगलों से मिलता है, पेड़ पौधे दरख्त वहाँ पर लगे हुए हैंगे, जो हम फैक्ट्रीज में बेचते हैं, वहाँ पर जो है फैक्ट्रीज में जो भी प्रोडक्शन है, जिस चीज़ का भी प्रोडक्शन है वहाँ पर काम आता है। सो हमें ऐसे जंगलों को जो है एकदम अपनी फायदे के लिए ख़त्म नहीं कर देना है, हमें उनको ध्यान से रखना है, प्रिजर्व करना है, आगे तक काम आएगा जो। In large areas of the world, human claims on these systems are reaching an unsustainable level, a point where their productivity is being impaired. When this happens, fisheries collapse, forests disappear, grasslands are converted into barren wastelands, and croplands deteriorate. इस तरह से अगर हमने मिसयूज किया बगैर सोचे समझे तो क्या होगा नतीजा? What will happen? जो grasslands हैं जहाँ चारों तरफ हरियाली हरियाली है वो barren lands हो जाएंगे, barren खाली, वीरान, सूखे, किसी काम के नहीं। फॉरेस्ट जो है उनको काट काट के आप जो है लकड़ियों को आप फर्नीचर में, डोर्स में और अपने फ्यूल में अलग अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं, पूरे फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे। कैसे बरसात होगी? हमारे जानवर जो है कि एनिमल्स वो कहाँ जाएंगे जो कि डेंस फॉरेस्ट में रहते हैं? देन क्रॉपलैंड्स डेटोरेट, कम होती चली जाएगी, कमी आती जाएगी। In a protein conscious and protein hungry world, overfishing is common every day. In poor countries, local forests are being decimated in order to procure firewood for cooking. लकड़ियाँ काट काट के जो है आप खाना पकाया जा रहा है, खाना पकाया जा रहा है, तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि लकड़ी ही नहीं मिलेगी, फिर क्या होगा? In some places, firewood has become so expensive that what goes up in the pot now costs more than what goes inside. That's what I told you. Pot के अंदर जो पक रहा है, that is not important. वो कीमती नहीं है। पॉट के नीचे जो है that is more costly. वो ज़्यादा कॉस्टली है, उसकी ज़्यादा कीमत है। काहे की वुड फ्यूल, जब काटे पेड़ आपने जंगल काट दिए, पूरे के पूरे जंगल ख़त्म कर दिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई, रोड्स बन गई, सब हो गया। सो अंडर द पॉट व्हाट इज लाइंग इज मोर कॉस्टली देन व्हाट इज इनसाइड द पॉट। Since the tropical forest is, in the words of Dr. Nares, the powerhouse of evolution, several species of life face extinction as a result of its destruction. That's what I told you. So many species have disappeared totally from this earth. We don't even know. सिर्फ हमको चित्रों में, पिक्चर्स में देखने को मिलता है कि ऐसे भी थे, और जो है भी तो वो भी बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे हैं। उनको जो है हंट कर दिया जाता है, शिकार कर दिया जाता है, प्रॉपर देखभाल नहीं है कि पता ही नहीं कहाँ पर है क्या है, तो वो भी एकदम ख़त्म ही होने चले जा रहे हैं। जेम्स पेयर, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, said the other day, we are saying that we are losing the forest at an acre a second, but it is much closer to an acre and a half to a second. हर सेकंड पे जो है हमारे जंगल जो है वो ख़त्म होते चले जा रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब पूरी तरीके से जंगल समाप्त हो जाएंगे। आर्टिकल 48A of the Constitution of India provides that the state shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. 48A भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो है ये ऐसा प्रावधान दिया गया है, प्रोवाइड किया है कि आप फॉरेस्ट जो है और वाइल्ड लाइफ को आप किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं करेंगे, आप उसको सेव करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे। बट वॉट कॉजेज एंडलेस एंग्विश इज द फैक्ट दैट लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉट एनफोर्स्ड इन इंडिया। लेकिन बड़ी बदकिस्मती से
जो है ये कहना पड़ेगा, बड़े दुख के साथ भी कहना पड़ेगा कि भारत में जो है लॉज तो बहुत बनती हैं, लेकिन उनको ओबे कितना करते हैं, दैट वी कैन काउंट ऑन आवर फिंगर टिप्स. For instance, the Constitution says that casteism, untouchability and bonded labor shall be abolished, but they flourish shamelessly even after 44 years of operation of the Constitution. Constitution में, हमारे संविधान में अस्पष्टता, untouchability, then casteism, जातिवाद का भी, bonded labor, आपके बंधुआ मजदूर जो है ये बंधुआ, उनको बिल्कुल कानून बना हुआ है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, उसके विरुद्ध जो है अगर होगा तो अगर आप करेंगे तो उसके विरुद्ध आपको सज़ा मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है. आज भी हमें जो है कास्टिज्म देखने को मिलता है, अनटचेबिलिटी देखने को मिलती है, छुआछूत की भावना. फैक्ट्रीज में बोर्ड तो लगा रहता है कि छोटे बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी. होटल्स में आप देखिए, दे आर वॉशिंग यूटेंसिल्स, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं वहाँ. A recent report of a parliament's estimates committee has highlighted of India forest over the last 4 decades. India, according to reliable data, is losing its forest at the rate of 3.7 million acres a year. Large areas officially designated as forest land are already virtually treeless. The actual loss of forest is estimated to be about 8 times the rate indicated by government statistics. किस रफ्तार से, इतनी तेज़ रफ्तार से हमारे जंगल जो हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट का फिगर ऐसा नहीं दर्शाता है, उसमें कम बताया जाता है. A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated. एक एरियल सर्वे हुआ था आसमान से, उन्होंने देखा कि जंगल के जंगल समाप्त हो चुके हैं, ख़त्म कर दिया गया है. मनुष्य ने अपने इस्तेमाल के लिए, अपने फ़ायदे के लिए पूरे जंगल ख़त्म कर दिए और वहाँ पर अपना, इससे उनका फ़ायदा हो, मल्टीज़ बना दी, रोड्स बन गई हैं, अलग अलग तरीके से उसको उपयोग करा, लेकिन जंगल समाप्त हो. There can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factors distorting the future of human society. आपने डिफॉरेस्टेशन कर दिया. एक और जो हमारे इसमें फैक्टर आता है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर, that is over population. The population is growing like anything, rapid growth in our population. लोग कहाँ रहेंगे? पेड़ों के ऊपर तो रहेंगे नहीं. They need a house, बहुत बड़ा नहीं तो एक कमरा तो चाहिए, तो कहाँ से आएगा? So deforestation, जंगल के जंगल खत्म कर दो, जहाँ पेड़ें खत्म कर दो, आप बिल्डिंग्स बनाओ, घर बनाओ, छोटी बनाओ, चाहे कुछ भी, आपको लोगों के रहने के लिए तो चाहिए ही. So this is all because of overpopulation. It took mankind more than a million years to reach the first billion. That was the world population around the year 1800. By the year 1900, the second billion was added and the 12th century was added another 3.7 billion. Fertility falls as income rise, education spreads and health improves. अगर एजुकेटेड रहेंगे तो फर्टिलिटी जो है वो नेचुरली वो रेट जो है उसका कम होगा. Thus development is the best contraceptive, but development itself may not be possible if the present increase in numbers continues. We have to develop, prosper, so we have to control our population. The rich get richer and the poor beget children which condemns them to remain poor. The rich they are becoming much richer, and the poor people, what? Nothing comes. वो वहीं के वहीं हैं, वो गरीब और ही होते जा रहे हैं. More children does not mean more
न्यूट्रलाइज्ड। कई लोगों की ये सोच होती है कि जितने ज़्यादा किड्स होंगे, बच्चे होंगे, उतने ज़्यादा हाथ रहेंगे काम करने के लिए। नो, ये आप गलत विचार है अगर ऐसा है तो। उसमें कितने तो बैठे रहेंगे, आनी मेंबर 2 है या 1 है, but he has to feed so many mouths. From where will he get the work? From where will he get the money? There is no alternative to voluntary family planning without introducing an element of provision. The choice is really between control of population and perpetuation of poverty. So, it is up to us. We have to decide. We can't force anybody. We have to decide how to control the population and to control it as well. ये हम व्यक्ति को जो है ना वो तय करना है, आप किसी के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते। The population of India is estimated to be 920 million today, more than the entire population of Africa and South America put together. इतनी population हो चुकी है। No one familiar with the conditions in India would doubt that the hope of the people would die in their hungry hutments unless population control is given topmost priority। जब तक कि भारतवर्ष में जनसंख्या वृद्धि के ऊपर या जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप्स नहीं लिए जाएंगे, जब तक हम इस समस्या से नहीं हट सकते। For the first time in Indian history, we see a transcendent concern, the survival not just of the people but of the planet. We are beginning to take a holistic view of very basis of our existence. The environmental problem does not necessarily signal our demise. It is possible for the future. The emerging new world vision has ushered in the era of responsibility. It is a holistic view and ecological view, seeing the world as an integrated whole rather than a dislocated collection of parts. Industry has a most crucial role to play in this new era of responsibility. What a transformation would be effected if more businessmen shared the view of the chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Cullen, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer. He said, our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance. Of all the statements made by Margaret Thatcher during the years of her prime ministership, none has passed so decisively into the current point of English usage as the fictitious words, no generation has a free hold on this earth. आप अपनी मर्जी से जो प्लैनेट आपको मिला है, यहाँ पर आप अकेले ही नहीं, बाकी और भी बहुत सी स्पीशीज हैं, आप उसको मिसयूज़ कैसे कर सकते हैं, उसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं, आप एनवायरनमेंट को कैसे ख़राब कर सकते हैं। In the words of Lester Brown, we have not inherited this earth from our forefathers, we have borrowed it from our children. ये हमको इनहेरिट नहीं मिला है अपने forefathers से, we have borrowed it from our children. हमें इसको आगे देना है हमारी आने वाली जनरेशन को, तो हमें उसको ख़राब करने का, ख़त्म करने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे पहले वाले की जो जनरेशन्स थी, हमारे फादर्स एंड फोरफादर्स प्रीवियस वन, उन्होंने भी तो हमको एक अच्छी खुशहाल धरती दी थी, जो हर तरह से जो हैगा जहाँ पर कि पूरी तरह से खुशहाल था, सब कुछ था, तो हम उसको कैसे ख़राब कर सकते हैं और क्यों करें? भाई हमारे बाद वाली भी तो जनरेशन हैगी जिसको कि हमें उसको सौंपना है। जब हमें अच्छे रूप में मिली है हमारी धरती, तो हम आगे वाली जनरेशन को कैसे खराब में दें कि उनके किसी काम की नहीं रहे। अगर आप पूरे कॉलेज ख़त्म कर दिया आपने, ओवर पॉपुलेशन है, जो हरे भरे खेत थे वहाँ पूरी धरती बंजर हो चुकी है, फिर कैसे? फिर आप आगे वाली जनरेशन को क्या दोगे? ये दोगे उनके लिए तो बिल्कुल बेकार है वो। आपको तो ऐसी नहीं मिली थी, जब आपको ऐसी नहीं मिली तो फिर आप कैसे उसको एकदम ख़राब करके, आपको ये क्या अधिकार है कि आप उसको यूजलेस करके आगे की जनरेशन को देंगे? नो, वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस प्लैनेट वेयर वी लिव
वी सर्वाइव, हमें उसको जो है बचाना है, सहेज के रखना है, संभाल के रखना है जो हमको मिला है, जिस रूप में हमें मिला था उसको और बेटर करना है, वर्स नहीं करना है। ओके, चैप्टर इज क्लियर। नाउ वी डू द क्वेश्चन आंसर्स। Locate the lines in the text that support the title, The Ailing Planet. Planet बीमार है जो, ग्रह, planet ग्रह, ailing बीमार planet जो है, बीमार ग्रह। The following lines in the text support the title, The Ailing Planet. Are we to leave our successors a scorched planet of advancing deserts, impoverished landscapes, and ailing environment? ये लाइंस जो है इससे ही पता चलता है कि जो है ये एलिंग प्लैनेट जो है उस पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, सूटेबल है। A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warned that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated. इतना खराब हो चुका है हमारा प्लैनेट, हमारा अर्थ प्लैनेट, कि रोज़ प्रतिदिन डेली और डिटोरेट कमी आती जा रही है उसमें। What does the notice the world's most dangerous animal at a cage in the zoo at Lusaka, Zambia signify? अंदर एक शीशा लगा हुआ है, वहाँ पर बोला जाके The notice the world's most dangerous animals at the cage in the zoo at Lusaka, Zambia signifies that man is solely responsible for all the deterioration in environment and depletion of natural resources. Yes, it's very true. We are responsible for all this pollution, deforestation. You are cutting everything, the whole of the forest, demolish कर देते हैं for your own use. आप अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, लेकिन उससे नुकसान कितना हो रहा है, नेचर को कितना नुकसान हो रहा है, फ्लड्स आ जाते हैं, सब कुछ तबाह हो जाता है। This man is the world's most dangerous animal. बाकी जानवर तो हमें मालूम है कि हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन मनुष्य तो एक जो है मनुष्य के रूप में सबसे खतरनाक जानवर साबित हुआ है, जिसके पास बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, विवेक है, उसके बाद भी अपने फायदे के लिए जो है वो इस धरती को जो है वो तबाह करता जा रहा है। कहीं जंगल काट रहे हैं, कहीं दूसरी जगह से नुकसान कर रहे हैं, ओवर पॉपुलेशन होती जा रही है, वो सारी चीज़ें को वो इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा, सिर्फ अपना फायदा देख रहा है। How are the Earth's principal biological systems being depleted? The Earth's principal biological systems are being depleted by excessive use. अगर हम किसी चीज़ को बार बार इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, वो कमी आने लगती, और उसमें अगर हम डाल भी नहीं रहे हैं कुछ, अब घड़े में से जो है आप पानी निकालते जा रहे हैं, उसको रिफिल नहीं कर रहे हैं, व्हाट विल हैपन? एक समय ऐसा आएगा कि पूरी तरह से पानी समाप्त हो जाएगा। तो वही है कि आप रिसोर्सेज को तो इस्तेमाल किए जा रहे होंगे बिल्कुल अपने फायदे के लिए, आने दो, बिल्कुल अभी तो बहुत है, नहीं, ये बहुत कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा, फिर हम क्या करें, फिर आप क्या करें? Overfishing is quite common. Forests are being hacked to obtain firewood for cooking. Grasslands are turning into barren wastelands, and croplands are deteriorating as their productivity has been impaired. जो फसल होती थी वो उसकी प्रोडक्शन में कमी आती चली जा रही है। जो ग्रासलैंड से या चारों तरफ हरियाली थी वो बैरन लैंड्स में कन्वर्ट हो गई, बंजर भूमि, वीरान, सूखा। अब ये कौन है सब इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल?
We human beings are responsible for this. Why does the authors ever that the growth of world population is one of the strongest factors deteriorating the future of human society? Yes, overpopulation is responsible. Yes, it is one of the factor, most important factor. तो इसको जो है हम किसी के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते हैं, ये हमें खुद सोचना पड़ेगा और इस पर बहुत जल्द फैसला भी लेना पड़ेगा और उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. Then only we will be able to control over population. सबको मिलना चाहिए जो उसका अधिकार है. जो अमीर है वो अमीर होते चले जा रहे हैं, गरीब जो है वहीं पड़ा हुआ है. सबको घर चाहिए और घर के लिए आप जंगलों को नहीं काट सकते. Okay, the question answers in the chapter is clear. Thank you.